أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. آج کا لیسن ہم شروع کریں گے انشاءاللہ شین سے. پچھلی والی ویڈیوز میں ہم نے الف سے لے کے سین تک جو ہے لیٹرز کی پریکٹس کی تھی ود مخارج، اور آج ہم نیکسٹ لیٹر شروع کرنے سے پہلے پچھلے والے سبق کی ہم مشق کریں گے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. میرے پیچھے دہرائیے گا. الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا، جیم، جیم، ہا، ہا، خو، خو. نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس دال، دال، ذال، ذال، رو، رو. اوکے، خو اور رو جو موٹے حروف ہیں. اوکے، ز، ز، اوکے، ز، ز. اوکے، جو ہمارے پاس نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے سین. یہ بہت ہی ایزی ہے. سین، 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 سین. زا اور سین میں ہلکی سی جو ہے نا سیٹی کی آواز آنی چاہیے. زا، سین. اوکے، اس کے بعد جو ہمارا نیو لیٹر ہے آج کا وہ ہم شروع کریں گے آج انشاءاللہ. یہ ہے شین. شین، شین، شین. شین کا جو مخرج ہے یہ ہے زبان کا بیچ، اور جو تالو کا بیچ ہے یہ آپس میں زبان کا بیچ جو ہے اوپر تالو کے بیچ سے لگے تو آپ کا شین صحیح ادا ہو رہا ہے. اور شین کی آواز ایسی ہے کہ شین کی آواز آپ کے پورے منہ میں پھیلتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی، جیسے شین، شین. اوکے، شین، شین، ایسے شین. یہ ہے شین. شین کے بعد اگلا ہمارا جو لیٹر ہے یہ اگین ایک موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ جو عربک میں موٹے حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ان کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جو حروف مستعلیہ. اوکے، صاد، صاد. اوکے، صاد، صاد. اس کا مخرج بھی بالکل سین، صاد اور زا کا جو ہے سیم ہے. اس میں یہ ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو صاد ادا ہوتا ہے. صاد، صاد. لیکن آپ نے اس کی آواز کو موٹا کرنا ہے، اپنے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. صاد، صاد، صاد. اوکے، صاد، صاد. اوکے، اس کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس وہ اگین موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے چوتھا لیٹر ہے ہمارے پاس. یہ ہے واد. واد، واد، واد. جب ہم زود جب ہم ادا کریں گے تو جو زود کا مخرج ہے وہ زبان کی کروٹ جو اوپر کی داڑوں سے لگے، جو اوپر والی داڑیں ہیں اوکے بائیں طرف کی اس طرف لگے تو یہ آسانی سے ادا ہوتا ہے. زود، زود. اوکے، زود، زود، زود. اب دونوں طرف ٹچ کر کے اور دائیں طرف بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن
बनिस्बत दाएं तरफ की, ये बाएं तरफ जबान लगाने से आसानी से अदा होता है। जो जबान की साइड है, जो जबान की करवट है, वो अपने ऊपर वाली बाएं तरफ की दाढ़ की जो साइड है, दाढ़ें हैं, उनके साथ आपने टच करनी है। ज़ाद, ज़ाद। जब आप मुखारिज के साथ लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपने फोकस ये रखना है कि जो मखरिज बताया जा रहा है इसका, जो एक्चुअली इसका मखरिज है, आप उसको ये फील करें चीज के आपका जो है ये लेटर अदा करते हुए आप उस मखरिज पे वो तवज्जो करें कि रियली उसी में से अदा हो रहा है, ये वहीं से अदा हो रहा है। जैसे आप इसको फील कर सकते हैं। ज़ाद, ज़ाद। ज़ाद को प्रोनाउंस करते हुए आप एक तो ये देखना है कि आप भरे हुए मुंह के साथ इसको अदा कर रहे हैं, और दूसरा आपकी जबान की जो साइडें हैं वो कहीं ऊपर वाली दाढ़ों के साथ टच हो रही हैं या नहीं। तो अगर आप इस चीज का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे और इसको अच्छे से अदा कर सकेंगे इंशाल्लाह के। जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो भी हरूफ मुस्तालिया में से ही है, वो है तो। तो, ओके। ता, दाल और तो। ता, दाल और तो। इनका जो मखरिज है वो एक ही है, एक ही जगह से अदा होते हैं। क्योंकि आवाज में थोड़ा फर्क है, क्योंकि डिफरेंट लेटर है तो ऑब्वियसली आवाज में फर्क होगा। ये ता, जो ये नुक्तों वाली ता है, और ये जो तो, ता, तो, इन दोनों में फर्क ये है कि एक की आवाज बारीक निकलती है और दूसरे की आवाज मोटी निकलती है। बाकी आप आवाज से इन्हें सिर्फ पतली और मोटी की वजह से आप पहचान सकते हैं। तो, ओके। तो इसका मखरिज भी सेम ही है। तो, तो इसमें जबान की नोक जब ऊपर के अगले दो दांतों की जड़ की तरफ वाले हिस्से से लगे, जो जड़ की तरफ है, ऊपर वाले दो दांतों की जड़ जो है, जड़ वाला जो हिस्सा है उस तरफ लगे, तो ये आपकी तो जो है आपका अदा होगा। तो, तो, तो। अगेन जो मुस्तालिया लेटर्स हैं वो सारे भरे हुए मुंह के साथ अदा होते हैं, फुल माउथ साउंड होती है इनकी। तो, 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 ओके। प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो, 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 ओके। जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो भी मुस्तालिया में से ही है, वो है वो। वो, ओके। वो। तो वो का जो मखरज है थोड़ा सा इनमें फर्क है। वो, वो और जाल, सा, इनका मखरज एक ही है। जब जबान की नोक जब इन्हीं जो ऊपर वाले अगले दो दांत हैं, दोनों दांतों की नोक की तरफ लगे, जो हमने कौ में देखा था वो ये था कि जड़ की तरफ हमारी जबान की नोक लग रही थी, लेकिन वॉ में जो है यही जो दो जो सामने वाले बिल्कुल फ्रंट के ऊपर वाले जो दांत हैं इनकी नोक की तरफ लगेगी, तो ये वो अदा होगी। वो, वो, ओके। वो, वो। अगेन ये मुस्तालिया लेटर में से है तो इसको हम भरे हुए मुंह के साथ अदा करेंगे। वो, वो, ओके। जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वो है आइन। आइन, आइन, ओके। आइन, आइन। आइन हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। आइन, हा की तरह। आइन, आइन, ओके। आइन, ओके। आइन हलक का जो दरमियान वाला हिस्सा है वहां से आइन वहां से अदा होता है। जब आप आइन अदा करें तो आप इसको फील कीजिएगा कि आपका जो हलक का दरमियान वाला हिस्सा है वहां से आइन की आवाज निकल रही है। आइन, आइन, ओके। हा, आइन, हा, आइन। ये वाला जो हा है, हा, हा, आइन, ये दोनों हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जो नेक्स्ट लेटर है वो है गॉइन, ओके। गॉइन, 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 गार्गलिंग साउंड जैसे होती है। गॉइन, गॉइन। गॉइन जो है हलक के शुरू शुरू से जो मुंह की तरफ वाला हिस्सा है वहां से अदा होता है। गॉइन, गॉइन, ओके। गॉइन, गॉइन। जो हलक से अदा होने वाले लेटर हैं इनको हरूफ हल्की भी कहते हैं,
जैसे ह, खो, आइन, गैन, ओके। ये जो है ह और सॉरी खो और गैन, ये दोनों जो है हलक के जो शुरू वाला हिस्सा है वहां से अदा होते हैं, और ह और आइन जो है हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं, ओके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो है फा। फा, ये बहुत ही इजी लेटर है। फा, ये ऊपर वाले जो सामने के दांत हैं, ये नीचे वाले होंठ का जो तरी वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, वहां पे टच होते हैं तो फा की आवाज निकलती है। फा, 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 ओके। फा, फा, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वो हरूफे मुस्तालिया में से लास्ट लेटर है। ये खो, रॉ, सौद, वॉद, तो, वो, गैन, ओके। ये जो सारे लेटर हमने पीछे पढ़े हैं ये हरूफे मुस्तालिया में से हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो रॉ है, रॉ सम टाइम बारीक पड़ी जाती है और सम टाइम मोटी पड़ी जाती है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ जो हरकत की वजह से बाज़-औक़ात रॉ मोटी पड़ी जाती है और बाज़-औक़ात बारीक पड़ी जाती है। और ये जो बाकी लेटर हैं ये हमेशा जो है मोटे पड़े जाते हैं। खो, सौद, वॉद, तो, वो, गैन, ये मोटे ही पड़े जाएंगे। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास वो है कॉफ, ओके। कॉफ, कॉफ। जब हम कॉफ अदा करेंगे तो हमारी जो जबान का शुरू वाला हिस्सा है, बिल्कुल लास्ट वाला जो मोटा वाला हिस्सा होता है, वो ऊपर जो तालू का जो सॉफ्ट वाला हिस्सा होता है, सॉफ्ट पैलेट जो होता है, वहां पे टच करेगा, ऊपर की तरफ रेज होगा, ऊपर की तरफ उठे। हमारा जबान का पिछला वाला हिस्सा जो है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला हिस्सा, वो ऊपर की तरफ उठेगा तो कॉफ अदा होगा। कॉफ, 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 ओके। कॉफ, 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 ओके। जो मुखारिज की हमने सही से प्रैक्टिस करनी है ताकि जब हम तलावत में या आगे वर्ड पढ़ते हुए जब इस्तेमाल करें सिंगल लेटर्स को तो तब आपको कोई इशू ना हो, आपके लिए इजी हो, ओके। सिंगल जो है इनकी पे एक एक लेटर की एक एक लेटर की आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगा। मुखारिज बहुत ही आसान है अगर इनको समझ के पढ़ा जाए तो। आपने जस्ट इन ये आवाज को फॉलो नहीं करना है, अपने मुखारिज को, आपने मखरिज पे भी फोकस रखना है कि ये लेटर कहाँ से अदा हो रहा है। और जब आप कॉफ अदा कर रहे हैं तो आपने ये फील करना है कि आपके जो जबान का पीछे वाला हिस्सा है वो अगर ऊपर उठ रहा है, ऊपर की तरफ रेज हो रहा है, तो इट्स मीन कि आप जो है इसको सही अदा कर रहे हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें तो ये अदा हो जाएगा। पहले आप ऐसे करें, अगर आप कंप्लीट बिगिनर नहीं हैं, आप अगर बिल्कुल जो स्टार्टिंग में जिनको जो है लेटर की पहचान भी नहीं है, अगर वहां से स्टार्ट नहीं है आपका, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक एक दफ़ा पढ़ा हुआ है, आज फिर मुखारिज की या तजवीद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि डेली एक बा ता ये मखरिज आसान है, जो थोड़े से मुश्किल हैं जैसे मुस्तालिया लेटर्स हो गए, हल्की लेटर्स हो गए, ये थोड़े से टफ हैं। आप इनमें से एक एक लेटर जो है डेली उठाइए या एक टाइम में एक सिटिंग में आप इसको उठाइए, इसके मखरिज के साथ इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इसको इम्प्लीमेंट करें, फिर आप इसको लेके जाएं कुरान पाक में जहाँ पे कॉफ यूज हो रहा है, जिस आयत में हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है, आप वहां पे इसकी प्रैक्टिस करें। आप फोकस सिर्फ वहां पे कॉफ पे रखें कि आपका कॉफ जो है आप तलावत करते वक्त आपका कॉफ सही अदा हो रहा है या नहीं। इस तरह से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तो आज के लेटर्स हमने किए हैं, अब इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।